طلبہ طالبات، ہم ولی کے غزل پر گفتگو کر رہے تھے جو شامل نصاب ہے. میں غزل کا ایک بار مطالعہ کر دیتا ہوں، پھر غزل کی پوری فن پر، غزل کی پوری اجزائے ترکیبی پر ہم بحث کریں گے اور بعد میں پھر اس غزل کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. دیکھیے، مفلسی سب بہار کھوتی ہے، مرد کا اعتبار کھوتی ہے، کیونکہ حاصل ہو مجھ کو جمعیت، زلف تیری قرار کھوتی ہے. ہر سحر شوق کی نگاہ کی شراب، مجھ آنکھاں کا خمار کھوتی ہے. کیونکہ ملنا صنم کو ترک کروں، دلبری اختیار کھوتی ہے. اے ولی آپ اس پری روح کی، مجھ سنے کا اعتبار کھوتی ہے. عزیز طلبہ و طالبات، یہ 5 اشعار پر مشتمل غزل. ہم نے دیکھا تھا کہ غزل کم سے کم 5 اشعار اور زیادہ سے زیادہ کئی اشعار پر مشتمل ہو سکتی ہے، لیکن کم سے کم 5 اشعار غزل کے موجود ہوتے ہیں. پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے. مطلع اس شعر کو کہتے ہیں جس میں جو شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہو اور ہم ردیف ہو. ہم ردیف نہ بھی ہو تو ہم قافیہ ہو. جس شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں وہ شعر مطلع کہلاتا ہے. اور غزل کا پہلا شعر التزام کے ساتھ، یہ شعراء اس بات کی پوری مکمل کوشش کرتے ہیں کہ مطلع ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں. اس شعری غزل کے اندر مفلسی سب بہار کھوتی ہے، مرد کا اعتبار کھوتی ہے. دیکھیے، بہار اور اعتبار، اگر یہ 2 لفظوں پہ غور کریں تو ہم کو معلوم ہوگا کہ یہ قافیہ ہیں اور کھوتی ہیں یہ اس کے ردیف ہیں. آخر میں ردیف سے پہلے والا لفظ جو ہم آواز ہوتے ہیں وہ قافیہ کہلاتے ہیں. غزل کی خوبصورتی کا راز بھی یہ ہے، اور غزل میں غنائیت اور تغزل جو پیدا کیا جاتا ہے وہ غزل کے قوافی ہی کی بنیاد کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. جیسے اور ردیف اس کے تغزل میں، اس کی غنائیت میں اور زیادہ جاذبیت پیدا کرتے ہیں. مفلسی سب بہار کھوتی ہے، مرد کا اعتبار کھوتی ہے. اب ہم یہاں دیکھیں، بہار کھوتی ہے، اعتبار کرتی ہے. ان دونوں مصروں کے اندر، غزل کے ان دونوں مصروں کے اندر قافیہ بھی موجود ہے، ردیف بھی موجود ہے، اور 2 مصرے مل کر ایک مکمل شعر بنتا ہے. اور ایک مکمل شعر، غزل کی خوبصورتی بھی یہ ہے کہ ایک مکمل شعر مکمل معنی اور مکمل جہاں پیش کر دیتا ہے. اس شعر کو سمجھنے کے لیے کسی دوسرے شعر کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی. اس لیے غزل کا ہر شعر مکمل اکائی بھی کہلاتا ہے. یہ غزل کا شعر مطلع کا شعر ہے، اور مطلع کے شعر کو اگر ہم سمجھتے ہیں تو یہ معلوم ہوگا کہ شاعر اس شعر میں کہہ رہا ہے مفلسی سب بہار کھوتی ہے، مرد کا اعتبار کھوتی ہے. اب کمال یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ غزل میں حسن و عشق کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن ولی و واحد پہلا شاعر ہے جس نے غزل کے مفہوم کو بدلنے کی کوشش کی، حسن و عشق کے باتوں کے علاوہ بھی زندگی سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی. اور جب ولی نے اتنی سادہ سلیس زبان میں، عامیانہ زبان میں، عام لوگوں کی زبان میں، عام مجمع کی زبان میں، عام قاری کی زبان میں اپنے کلام کو پیش کیا تو اپنے کلام کے اندر عام قاری و سامع کے مسائل کو بھی پیش کیا ہے. مفلسی سب بہار کھوتی ہیں، مرد کا اعتبار کھوتی ہیں. مفلسی کہتے ہیں غریبی کو. یہ مطلع کا شعر ہے. دیکھیے دوسرا شعر، کیونکہ حاصل ہو مجھ کو جمعیت، زلف تیری قرار کھوتی ہیں. دیکھیے اس غزل کا دوسرا شعر، کیونکہ حاصل ہو مجھ کو جمعیت، ابھی بالکل جدا گانا مصرع ہے. اس میں قافیہ ردیف کا التزام نہیں ہے، بلکہ اس کے دوسرے مصرے میں زلف تیری قرار کھوتی ہیں. جیسے مطلع کے دونوں شعروں میں اعتبار کھوتی ہے، بہار کھوتی آیا تھا، شعر کے دوسرے مصرے میں، غزل کے چوتھے مصرے میں قرار کھوتی ہے. یہ قرار کھوتی ہیں، یہ قمار کھوتی ہیں، اور یہ اختیار کھوتی ہیں، اور یہ اعتبار کھوتی ہیں. یہ جو لفظ آئے ہیں یہ قافیہ اور ردیف ہیں. یعنی یہ بات طے ہے، یہ بات طے ہے کہ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، اور ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتا ہے. اگر غزل کے دوسرے شعر میں بھی ہم قافیہ اور ردیف کا التزام کیا جائے تو حسن مطلع کہلاتا ہے. اور غزل کے شعر کا ہر دوسرا مصرع ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتا ہے. یہ غزل
मुकम्मल तौर पर गजल के फनी लवाजिम को पूरा करती हैं। और गजल का आखिरी शेर में शायर अपना तारुफ पेश करता है, जिसमें शायर अपना नाम, अपने तखल्लुस को पेश करता है। जैसे ऐ वली आप उस परी रूह की, वली ने यहाँ पर अपना नाम, अपना तारुफ पेश किया। ऐ वली आप उस परी रूह की, मुझसे का एतबार होती है। अब देखिए यहाँ पर वली ने अपने नाम का भी इजहार किया, ऐ वली आप उस परी रूह की। हाँ, तो साथियों पहला शेर अजीज तलबा, पहला शेर मतला कहलाता है, ये गजल के अशार है। आखिरी शेर जो कि मख्ता है, मतला, मख्ता, और ये जो सारे लफ्ज हैं काफिया और रदीफ हैं, काफिया और रदीफ। तो ये मुरद्दिफ गजल है, काफिया और मुरद्दिफ है। आइए इस गजल की दूसरी खूबसूरती देखिए। वली का ताल्लुक दक्कन से है, हमारी सरजमीन से है, और हमारी जमीन का एक लहजा है। हम वक्त को वक्त कहते हैं, हम वक्त क्या हो रहा कहते हैं। हमारे पास बात लफ्जों में तजदीद इस्तेमाल होती है, दक्कन की जबान है ये, और हम हर बात में नक्को, आको, ये जो हम नून साकिन का भी इस्तेमाल हमारी जुबान में करते हैं, बल्कि शुमाली हिंद में इससे मुख्तलिफ जुबान इस्तेमाल होती है। तो इस गजल के अंदर हमको वली की दकनियत भी नजर आएगी, दकनी लफ्जों की नजाकत और खूबसूरती भी नजर आएगी, और वली का दक्कन से मोहब्बत और जुबानदानी का शौक और बलबला भी नजर आएगा। हम देखें अगर मुफलिसी सब बहार होती है, मर्द का एतबार होती है, क्योंकि हासिल मुझको जमीयत जुल्फ तेरी करार होती है, हर शहर शौक की निगाह ये खालिद दखनी लफ्ज है। मुझे अखा भी दखनी लफ्ज है, यानी आंखें, क्योंकि मिलना सनम को तर्क करूं दिल भर इख्तियार होती है। अवली आप उस परी रूह की, मुझसे का एतबार कहते हैं, परी रूह की मुझसे का एतबार होती है। यानी इस गजल में दकनी मिजाज, वली की दकनियत की भी खूबसूरती हमको नजर आती है। आइए गजल की तरफ चलते हैं, गजल की खुलासे की तरफ। हमने यहाँ पर गजल के मुकम्मल अज़ाए तरकीब भी देख लिए, गजल की खूबसूरती भी देख ली कि दकनी जबान का किस तरीके से वली ने इस्तेमाल किया। अब हम गजल के माना और मफहूम की तरफ चलते हैं। मुफलिसी सब बहार होती है, मर्द का एतबार होती है। पहला शेर जिसमें लफ्ज मुफलिसी आया है, मुफलिसी कहते हैं गरीबी को। सच्ची हकीकत से लबरेज, जिंदगी से आंख मिलाता हुआ शेर, हमारी अपनी जिंदगियों का तर्जुमान शेर। 1667 में वली पैदा हुए, 1707 में वली का इंतकाल हुआ। आज से 400 साल पहले लिखा हुआ शेर देखिए, आज भी हूबहू वही मंजरकशी करता है जो 400 साल पहले थी। कह रहे मुफलिसी सब बहार होती है, मर्द का एतबार होती है। कहते हैं कि जमीन पर सबसे बड़ी अगर बीमारी और कोई चीज है जो मर्द की औकत को, मर्द की इज्जत को, मर्द की हमीयत को, मर्द की गैरत को खत्म कर देती है, वो मुफलिसी है। मुफलिसी सब बहार होती है। कहा कि जिस पर मुफलिसी का हमला हो जाए, जिस पर गरीबी हो जाए, उसके जिंदगी की सारी खुशियां खत्म हो जाती हैं, सारी बहारें खत्म हो जाती हैं, बल्कि दुख और खजा ऐसे उसके ऊपर हावी होती हैं कि जैसे पतझड़ का मौसम हो, जैसे दुखों की बारिश हो रही हो। मुफलिसी सब बहार होती हैं। कह रहे कि मुफलिसी आदमी के, जब मुफलिसी आती है तो सारी खुशियां खत्म हो जाती हैं, सारे ऐश आराम खत्म हो जाते हैं और मर्द का एतबार करती है। और इंतहा तो ये होती है कि मर्द का एतबार खो देती है। जिस मर्द को मुफलिसी आ जाए उसकी कोई इज्जत नहीं करता, उसकी समाज और माशरे में कोई औकत नहीं होती, उससे कोई एहतराम से बात नहीं करता, उसको कोई सलाम करना पसंद नहीं करता। बल्कि माशरे में, आज के माशरे में, आज से 400 साल पहले के माशरे का जिक्र वली कर रहे हैं, और हूबहू यही तस्वीर आज के माशरे में है। भले ही कितना बड़ा डके, जानी, बदकिरदार, बदखुमाश शख्स हो, अगर वो पैसे वाला हो तो दुनिया उसको झुक सलाम करती है। अगर कोई नेक सिफत पाकबाज शख्स हो, अगर मुफलिस हो, तो दुनिया उसकी तरफ फटे मुंह देखना भी पसंद नहीं करती, उसकी इज्जत और वक़्त का ख्याल भी नहीं करती। शायद मुफलिसी सब बहार होती है कि जिसके घर में गुर्बत आ जाए उसकी सारी खुशियां खत्म हो जाती हैं, मर्द का एतबार होती है। और ये मुफलिसी इतना मूजी चीज है कि अच्छे भले आदमी का माशरे से एतबार उठा देती है, इज्जत को खत्म कर देती है, क्योंकि हासिल उसको जमीयत जुल्फ तेरी करार होती है।
शायर यहाँ कह रहा है, शायर ये मुझ क्यों के हासिल हो मुझको जमीयत, जुल्फ तेरा करार होती है। शायर ने कहा, ऐ मेरे महबूब, मुझे अब एक सोई हासिल नहीं होती, मैं तन्हाई में अपने खालिक के हुजूर जाना चाहता हूँ। मैं अपने आप को एक सोई के साथ किसी एक चीज पर मरकूज करना चाहता हूँ। मैं अपनी तवज्जो ध्यान सब तरफ से हटाकर तुझ पे मरकूज कर देना चाहता हूँ। लेकिन क्योंकि हासिल हो मुझको जमीयत, जमीयत कहते हैं एक सोई को पूरे अपने हवासे खमसा को एक जगह कर किसी एक चीज पर मुतवज्जे हो जाना, या अपनी तवज्जो को किसी एक चीज पे मरकूज कर देना, या किसी एक के हवाले हो जाना। तो शायद कह रहा है क्योंकि हासिल हो मुझको जमीयत, मुझे कैसे एक सोई हासिल हो सकती है, मुझे कैसे जमीयत हासिल हो सकती है, मैं कैसे किसी एक चीज पर मरकूज हो सकता हूँ। मैं अपने ध्यान भर को एक जगह जमा करने से कासिर हूँ, क्योंकि जुल्फ तेरी करार होती है। कि मेरे महबूब, जब तेरी जुल्फ बिखरती है, तेरे जुल्फ में बल आते हैं, तेरे जुल्फ में बेजोकम आते हैं, जब तू अपने जुल्फ को झटका देता है तो मेरा करार खो लेती है, मैं बेकरार हो जाता हूँ। तेरे जुल्फ के एक अंदाज से मैं अपनी जमीयत को, अपनी एक सुई को, अपने ध्यान को भटका देता हूँ। अगले शेर में शायर कहता है, हर सहरे शौक की निगाह की शराब मुझ अखियां का खुमार खोती है। हर सहरे शौक की निगाह का शराब, हर सहर सुबह शौक की निगाह की शराब। कह रहे हैं कि जब भी मेरी निगाह हर सहरे शौक की निगाह की शराब। है मेरे महबूब, तेरी खुमार से लबरेज आंखें, जब तेरी जब सुबह की जागी हुई खुमार सी शौक भरी आंखें, तेरी आंखों में जब मैं देखता हूँ तो तेरी आंखें शराब से लबरेज नजर आती हैं। तेरी आंखों के अंदर वो सहरे शौक नजर आता है जिसमें मुझे आंखों को खुमार होती है, जिसमें मैं अपनी आंखों के लिए, अपनी जिंदगी के लिए शराब महसूस करता हूँ। मैं खुमार, मेरी आंखों का खुमार मुश्तइल हो जाता है और मैं तेरे अंदर डूब जाता हूँ। क्योंकि मिलना शर्म को तर्क करूं, दिल भर इख्तियार कहती है और कहती है कि मैं मेरे महबूब, मैं तुझमें इतना मगहम हो गया, मैं तेरे अंदर इतना मैं तुझसे इतना वाबस्ता और मेरा ताल्लुक इतना हो गया कि अब दुनिया वाले कहते हैं कि अपने महबूब से तर्क ताल्लुक कर दो ताकि तुम्हें जमीयत हासिल हो। वो कहने के क्यों कर सनम से मिलना तर्क करूं। ये कैसे हो सकता है कि मैं अपने महबूब से मिलना तर्क कर दूं, ये कैसे हो सकता है कि मैं अपने महबूब से ताल्लुक को खत्म कर दूं, ये कैसे हो सकता है कि मैं अपने महबूब से अपने मरासिम को खत्म कर दूं। दिल भर इख्तियार होती है कि ये मेरे अब महबूब से तर्क ताल्लुक करना या महबूब से मुलाकात को तर्क कर देना या उससे ताल्लुक का खत्म करना, अब ये मेरे इख्तियार की बात रही ही नहीं। शायर कह रहा है कि क्यों कहे मिलना सनम को तर्क करो, दिल भर इख्तियार होती है। अब ये मेरे इख्तियार की बात नहीं रही, बल्कि मेरा दिल तो बिल्कुल मुसम्मा है उसकी मोहब्बत पे, उसके उन्स में, उसके इश्क में ऐसा मफलूज हो चुका है कि अभी मेरे इख्तियार में रहा ही नहीं कि मैं अपने से उससे ताल्लुक बनाऊं या अपने से उससे ताल्लुक तर्क करूं, बल्कि भी दिल का मामला हो गया, इस पे मेरा कोई इख्तियार नहीं। क्योंकि मिलना सनम को तर्क करूं, दिल भर इख्तियार होती है कि अब ये दिल मेरा इख्तियार में नहीं रहा, मेरे दिल से पूरा मुकम्मल इख्तियार खत्म हो चुका है। ऐ वली आप उस परी रूह की मुझ सुनेगा, ऐ वली आप उस परी रूह की है वली आप इस परी रूह की मुझ सुनेगा गुबार होती है। शायद कहना है वली आप उस परी रूह की मुझ सुनेगा गुबार होती है कि है वली जब से उस परी रूह के चेहरे की चमक को तुमने देखा हो, मुझ सुनेगा गुबार
ہوتی ہے، مجھ تجھے کا غبار ہوتی ہے.